children, welcome back to the new session. This is session number 10. The chapter is 14, statistics. Yes, in the previous session, we were solving exercise 14.3. We move on to the next question of the same exercise, and it's question number 7. Alright, let's read the question and see what we are supposed to do, what we are asked to do here. The runs scored by two teams, A and B, two teams, A and B, on the first 60 balls, on the first 60 deliveries, on the first 60 balls of a cricket match are given below. First 60 deliveries, या first 60 balls, means how many overs? 10 overs. क्या बात है, उसको पता है, एक ओवर में 6 balls होते हैं. Yes, most of you do watch cricket and you should know. All right. Okay. So 10 overs, 60 balls. Let's see the information. Ball number 1 to 6. Team A scored 2. That means in the first over it scored 2. And team B scored 5. From 7th ball to 12th ball. From 7th delivery to 12th delivery. That means second over. Team A scored 1. And team B scored 6. That's the information we have for the runs scored by the two teams in first 60 balls. Achha. What is the question? Represent the data of both the teams on the same graph by frequency polygon. So आपको क्या draw करना है? Frequency polygon. Of both the teams on the same graph paper. You can do one thing. एक पॉलीगॉन आप पेंसिल से ड्रॉ करो और दूसरा पॉलीगॉन आप and use two pens. Okay, red one is for team A and I'll take green one. No, green. Let me take the black one for team B. Okay, all right. First I decide for team A. Now it is frequency polygon. Which graph? What should be taken on y-axis? Dependent polygon. Yes. Which one? Runs. Runs. ये runs को. All right. Runs you will take on y. And on x-axis? Number of balls वो तो ठीक है. Class वो भी ठीक है. You all are missing out something. क्लास मार्क लेना है. क्लास मार्क दैट इज सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू. लेकिन हम क्लासेस ले लेंगे, फिर एग्जैक्टली बीच में वाला जो पॉइंट होगा वो उसका सेंट्रल वैल्यू है, मिड वैल्यू है, या जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क. ठीक है चिल्ड्रन, व्हाट डू आई डू नाउ? कैसे शुरुआत करें? Yes. तो ये डिस्ट्रिक्ट वैल्यू है उसको कंटीन्यूअस में ट्रांसफर करना. वो भी एक बात. All right. This it's discrete. 6 और 6 रिपीट नहीं हो रहा है. 12 के बाद 13 है, वो रिपीट नहीं हो रहा है. You understand? Okay. So this is discrete frequency distribution. If you are going for frequency polygon, okay, या histogram, then you have to convert into continuous. You understand? Yes. समझ में आई बात? Yes. Okay? Sure? तो वो करना पड़ेगा. Should I do it here? Yes. 0.5 निकाल दो. 0.5. 0.5 बढ़ा दो. 0.5. 6.5. 12.5. 12.5. 18.5. 18.5. 24.5. 36.5, 42.5, 48.5, 54.5, 60.5, 21.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5, 60. That is okay. Yeah. ये लड़की जो बता रही है वो भी सही है. इसके आगे का एक लेना है हमें और इसके बाद का भी एक लेना है. वो
पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए, करेक्ट? सो यहाँ कितना डिफरेंस है? 6 का, करेक्ट? द डिफरेंस इज ऑफ 6 इफ यू सी 36 minus 30 is 6, 30 minus 24 is 6, 24 minus, वही सेम डिफरेंस यहाँ। सो 6 माइनस करो तो 0.5 और 6 प्लस करो तो 66.5, तो 0.5 से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? 0.5, फिर 6.5, फिर 18.5, then 24.5, then 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5, 5। ऐसे मत लिखना, हाँ? मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। फिर उसके बाद 72.5, 78.5। चलो, यह टीम ए का हाईएस्ट वैल्यू 10 है, दोनों का देख लेना पड़ेगा, इसका भी 10 है। सो 10 तक कम से कम होना चाहिए। सो वी कैन टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, हो गया? नाउ मैंने टीम ए का रेड पेन से कहा था, ओके विशाल, राइट द स्केल। स्केल x एक्सिस, y एक्सिस, 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर इज 6, ये क्या है? बॉल, 6 बॉल्स है ना, और यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये क्या है? गन, 1 सेंटीमीटर इज 1, और ये भी लिखना पड़ेगा, यहाँ क्लास मार्क है, इज अ क्लास, लिखेंगे क्लास मार्क, और ये है रन, है ना? नाउ आई विल स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स। ये क्या है? बोलो। 6.5 कहाँ है? यहाँ है। हाँ, एक और चीज, किंग आएगा कि नहीं आएगा? 6 का डिफरेंस है ना, तो 0.5 माइनस 0 इज 0.5, हमने नहीं आया तो हमें किंग लगाना पड़ेगा, है ना? नेक्स्ट वी हैव रिटन क्लास मार्क हियर, करेक्ट? बट these are not class marks, these are lower boundary point and upper boundary point of the first class. Then so these are boundary points, so we'll have to find the class mark, we'll have to find the class mark. So I'll find class mark somewhere here, क्या रे वो करिए आपने? class mark, total of these two वही भी 7, इसका भी total 7 ही होगा, divide by 2, so class mark of the first class will be 3.5. 12 plus 7 is 9, yeah, 12.5 plus 6.5 is 19, not 9 but 19, 19 divided by 2 is 9.5, 6 ऐड करते जाओ, so 15.5, 6 ऐड करोगे 21.5, 6 ऐड करोगे 27.5, 6 ऐड करोगे 33.5, 6 ऐड करो 39.5, 6 ऐड करो 45.5, 6 ऐड करो 50, and then if you add it is 57.5. ये 3.5 कहाँ आएगा? Exactly ये दोनों के बीच वाली लाइन। ये 9.5 क्या है? कहाँ आएगा? 6.5 और 12.5 के बीच में, वहां लाइन होने वाली नहीं है। If there are 5 divisions, there would be line. ये ग्राफ में 1 सेंटीमीटर में 5 डिविजन होगा तो वो लाइन नहीं होगी, आपको देखना पड़ेगा। चलिए लेट्स सी नाउ। 3.5 is class mark, 3.5 is the class mark and 2 is the marks, all right? So 6.5, sorry 3.5 exactly ये दोनों के बीच आएगा, right? यहाँ बीच में, और 2 यहाँ है, so this will be the point. Are you getting me? Yes. Next class mark is 9.5, जो 6.5 और 12.5 के बीच आएगा, and runs is only 2,
ये लाइन होगी, सॉरी 1 रन इज ओनली 1, सो यहाँ आएगा। फिर ये लाइन आपको नहीं मिलेगी, आपको रूलर रखना होगा। नेक्स्ट विल बी 15.5 and 8 runs. 15.5 lies exactly in the middle of 12.5 and 18.5. ओके, और यहाँ कुछ रन्स भी ज्यादा है, कितने? 8. So somewhere. Are you getting me? Last bench, can you see this dot? तो बड़ा करो. Then you have 21.5, that will be exactly falling in middle of 18.5, 24.5, और runs कोड़ा 9, so वहां तक लेना होगा 21.5 exactly यहाँ, और 9 runs somewhere here, ये रहा। Is that clear? फिर 27.5 4 runs, 27.5 falls exactly in middle of 24.5 and 30.5, so 24.5 और 30.5 के बीच रूलर रखेंगे, और runs are 4 वाली लाइन यहाँ somewhere, this one. The next is 33.5 और 5 runs, 30.5 और 36.5 के बीच रूलर रखेंगे exactly, जहां 33.5 होगा और 5 runs यहाँ कुछ आएगा 5 runs वाला। Are you getting me? फिर next is 39.5 और runs कोड़ा 6, 36.5 और 42.5 के बीच 39.5 होगा, और 6 runs यहाँ होगी horizontal line, वो मिलेगी लाइन आपको somewhere here। चलिए, then 45.5 versus 10 runs, 42 और 48 के बीच 45 वाला पॉइंट आएगा, है ना, 45.5, और रन्स 10 है, ऊपर जाएगा यहाँ तक, ये रहा। Is that clear? Then next is 51.5, 48 और 54 के बीच, if I say exactly 48.5 और 54.5 के बीच, और रन्स कितने होंगे? 6, चलिए 6 रन्स, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, 6 रन वाला आगे भी आ चुका है, राइट, ये रहा। नेक्स्ट द लास्ट वन 57.5 और 2 रन, 57.5, 54.5 और 64.8 बीच होगा, और सिर्फ 2 रन वाली लाइन, पहले भी एक है 2 रन। अब ये जो फर्स्ट वन था उसके आगे, बाप रे, वो तो माइनस आएगा, -2.5, -2.5, तो वो कुछ यहां हम कर सकते हैं, राइट, ऑलराइट, -2.5 होगा ना, और इसके बाद 6 ऐड करो, तो 63.5, वो ये दोनों तो बीच आएगा यहाँ, ये दोनों के बीच, ऑलराइट, इसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। Anyways, you can do one thing, you can join with this point, no problem, okay? Because of king, फिर ये आएगा ना, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर this one, don't draw with hand, put ruler, ये छोटी छोटी लाइन के लिए बहुत बड़ी रूलर है, इसलिए मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, this, this one, okay? This is frequency polygon for E main. Now in B, उसके क्लास मार्क सेम, लेकिन रन्स अलग होंगे, 3.5, सो ये 3.5 वाली लाइन 5 तक जाएगी, यहाँ है पॉइंट, समझ में आया? 9.5 और 6 रन, 9.5 ये वाली लाइन 6 रन तक जाएगा यहाँ, राइट। देन 15.5 वाले 2 रन, 15.5 ओनली 2 रन, सो ये वाली लाइन सिर्फ यहां तक जाएगी 2 रन तक, राइट। 21.5 10 तक जाएगा ऊपर, है ना। फिर 27.5 ये दोनों के बीच कहां तक
वो कॉमन है दोनों, देखो इसमें भी, इसमें 4 रन था, ऊपर है। सर थोड़ा ऊपर आएगा। थोड़ा ऊपर आएगा, करेक्ट या। चल फिर 33.5 इस दोनों के बीच 6 रन, 6 तक जाओ या। फिर 39.53 ये दोनों के बीच 3 रन तक, यहां तक ये 3 रन वाली लाइन समझिए। फिर 45.5 ये दोनों के बीच कहां तक लेना है, 4 रन यहां तक आएगा। फिर 51.5 8 रन, 51.5 8 रन तक जाओ, यहां कुछ आएगा, राइट। और 57.5 10 रन अगेन यहां से, है ना। चलिए, और ये लास्ट वन तो सेम क्लोज होगा दोनों के लिए। अब यहां से ये, फिर ये दूसरा था ना, ये यहां से ये this one, this one. So that is frequency polygon for team B, और जो रेड वन था वो टीम A. So you have drawn frequency polygon for both the teams. Okay, जो डिटेल थी. All right, कुछ questions है वहां? No, only draw. Correct? So children, here it is, the next one. It is number 8. All right. Let's see the question. A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. Age group 17 तक है. 1 year to second year. Second year complete नहीं, क्योंकि second is not included here. 1 से 2 साल के बच्चे, लेकिन 2 साल पूरा नहीं होना चाहिए. ऐसे 5 बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. There is a park. पार्क में बच्चे खेलने के लिए आते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के. जितने छोटे हैं उतने ज्यादा दिखेंगे. ओके, चलिए. 2 to 3 चिल्ड्रन. एज ग्रुप 3 to 5, 5 to 7. ये मैक्सिमम होंगे कि वो दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं. ये छोड़ देंगे, उनको मना भी करेंगे. वहां सिक्योरिटी होगा तो बोले तुम बड़े बच्चे, आप नहीं जा सकते ये स्लाइड पे, बोल देंगे, है ना. फिर भी देखो 10 to 15 वाले मैक्सिमम है. वो हाइट में सब छोटे छोटे होंगे. हाँ, 5-7 साल की गिनती में चले जाते होंगे. अच्छा, so understood this? What is the data? What is the information all about? Yes. Different age group and the number of children playing in the park. Okay. Draw histogram to represent the data above. Yes, इसका आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. गुड न्यूज क्या है? यहाँ गुड न्यूज क्या है डेटा में? वेरी गुड. द डेटा इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमें कंटिन्यूटी करने की जरूरत नहीं है. आगे जो रेड में मैंने लिखा वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. आई हैव जस्ट एडेड दिस क्वेश्चन. ऑल्सो ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द सेम ग्राफ. Children, the next question after 8 is 9, which is similar to this question. The different information is given, data is given, and you have to draw histogram. But there also you add, also draw frequency, and that is for your homework. Achha, let us see how we do this. Oh children, if you want to take draw histogram, what you need? Age on x-axis, and this is dependent variable, number of children, it will be on y-axis. But if you draw frequency polygon, you need class mark. You need class mark. तो class mark की तो कोई दिक्कत ही नहीं है. हर एक क्लास के एग्जैक्ट सेंटर में ले लो, that is your class mark. Suppose class mark ये 2 पॉइंट है, ये और ये एग्जैक्टली सेंटर में ये पड़ेगा. वो लाइन मिले या ना मिले, with the help of ruler you can draw. Suppose कि ये और ये, क्योंकि as that boy said, different thickness will be the of histogram. Suppose कि यहां से यहां ये पॉइंट और ये पॉइंट.
अब ये दोनों के बीच यहाँ आएगा, है ना, यहाँ। अब ये ले लो तो एग्जैक्ट यही बीच में आएगा, है ना। We'll see while we draw. Okay? You will understand what I'm trying to say here. So here, little bit addition is there in the question. Okay? And on the same graph paper, you will see two graphs. One histogram and other. चलिए पहले तो हम क्लास, यहाँ क्लास अलग अलग है। 3 minus 2 is 1, 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is 2, 10 minus 7 is 3, 15 minus 2 17। सो अलग है। सो हमें 1 से शुरू करके 17 तक लिखना होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, किंक की जरूरत है। What is 4 minus 3? 1. 3 minus 2? 2 minus 1? And 1 minus 0? Same here. Here we need 12. Here we need 12. तो आप डबल ले सकते हो, क्योंकि 24 ब्लॉक्स मिलेगा, या सिंगल भी ले सकते हो 1 2 3 4। मैं डबल लेने वाला हूँ इस बार। 2 सेंटीमीटर इज 1 2, एक छोड़ के 3, एक छोड़ के 4, एक छोड़ के 5, एक छोड़ के 6, एक छोड़ के 7 8। ठीक है, स्केल लिखेंगे। स्केल x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 1 1 1 1 1 है ना, और ये एज है। सो 1 ईयर, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। सो 2 सेंटीमीटर y एक्सिस, आई हैव टेकन 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 चाइल्ड। 1 चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं, 1 चाइल्ड। ठीक है, 1 है सिंगुलर। ओके, चलिए, आर यू रेडी नाउ? क्या ड्रॉ करेंगे पहले? पहले हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना। भले यहाँ पहले फ्रीक्वेंसी करो और ड्रॉ, हिस्टोग्राम बोला है, आप हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करेंगे। बिकॉज फ्रॉम हिस्टोग्राम यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कैसे, हम देखते हैं, बट फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ओके, चलिए 1 2 2, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, और 5 तक लेना है। सो ये रहा, है ना, 5 तक की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर 2 2 3, 2 यहाँ 3 यहाँ, कहां तक बाहर जाएगा? 3 तक ही जाएगा। 3 यहाँ है। ठीक है, 3 2 5, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है। सो यू हैव टू जंप। कहां तक जाएगा? ऑलराइट, मैं 6 तक ले लूं। यहाँ है 6, इसको भी 6 तक बढ़ाना होगा। हो गया बात? ठीक आया ना? 5 to 7, 5 is here, 7 is here। 7 से कहां तक? एकदम ऊपर तक जाएगा। 12 यहाँ है, इसको भी ले लो, लेना ही पड़ेगा। राइट, वो सेम थिकनेस। फिर 10 to 7 to 10, 7 to लंबा सा जंप है, 9 तक ले लो, और थिकनेस बढ़ गई। 9 यहाँ है, और यहां से वो भी हो गया। राइट, अब 10 to 15 और बड़ा जंप, और 10 तक जाना है। ये 10 और ये 15, और कहां तक जाना है? 10। वो भी बहुत लंबा रास्ता है, यहां
ठीक है? Yes. Can you see that? और इसको भी थोड़ा करना पड़ेगा, पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो, एंड वाला हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड द लास्ट वन 15 to 17 यही है, कहाँ तक? 4 तक, ऐसे मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा। It is very slippery to hold the ruler here on the board. तो हमारा हिस्टोग्राम तो बन गया, हिस्टोग्राम तो लेकिन सब अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए सेंट्रल मार्क या क्लास मार्क, सेंट्रल वैल्यू, अरे भाई यहाँ सेंटर ले लो दोनों के बीच, आपको मिल जाएगा। यही हमारे सब क्लास मार्क है, एग्जैक्टली सेंटर में, देख लो। हाँ सर, एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा, तो यहाँ ले लो कोई बात नहीं, और यहाँ अरे भाई इसके ऊपर ले लो कोई बात नहीं। डू अंडरस्टैंड? क्योंकि क्लास लेंथ कांस्टेंट है, नहीं तो आगे पीछे ले लेंगे, और फिर जोड़ो इसको ब्लू से में। हाँ चलेगा चलेगा, थैंक यू। ये मैंने बोला था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बड़ा आसान होना, क्योंकि पॉइंट यू कैन प्लॉट वेरी नाइसली इजीली। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो 9 है सिमिलर है। There also you are asked only to draw the histogram, but then you will also draw the frequency polygon on the same graph paper. This question is important from the point of view of examination children. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके साथ, आपको मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। Where you have to draw, yes, the blue that you see is frequency polygon. We have closed it as well, and the red part that you see is your histogram. Is that clear? Yes. All right? Yes. Sure? Yes. Now, we saw in the previous question two teams, team A and team B. या ज्यादा टीम भी हो सकती है। अभी 2020 वर्ल्ड कप चलने वाला है, शुरू हो गया ऑलमोस्ट। यू अंडरस्टैंड? ओके, कुछ क्वालिफायर्स गेम्स हो रही है, और तो विच टीम इज बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पे। अभी आईपीएल पूरा हुआ, तो कुछ कमेंटेटर्स स्क्रूटिनाइज करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि कौन सा टॉप बॉलर था, कौन सा टॉप बैट्समैन था, हु इज द इमर्जिंग प्लेयर। बहुत सारे चीजें बाहर निकलती है। वो कहां से आती है? वो स्टैटिस्टिक्स से आती है, वो पूरी इंफॉर्मेशन डेटा से वो निकालते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसी कंपैरिजन करना, ऐसे नए नए स्टेटमेंट लाना, कंक्लूजन करना, कंपेयर करना, ऑलराइट, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। We have got different formula, we have got different tools to decide or compare two groups या more groups. Are you getting me? वो उसमें से 3 हम पढ़ने वाले हैं। They are called measures of central tendency. They are called and we are going to learn 3 measures of central tendency: mean, median, and mode. So children, next time when we meet, we'll try to understand the concept of mean, median, and mode. Alright? And then we'll learn how to find mean, median, and mode for various data. Alright? Till then, goodbye. Have a nice day. Stay safe.